this is the formula, but always I write like this form so that it can be easily be found out whenever you want to find degree Celsius or degree Fahrenheit. So degree Celsius is equal to 5 by 9 bracket whatever your Fahrenheit is being given minus 32 degree. Whenever you have to find degree Fahrenheit, you always write 9 by 5 into degree C, into Kelvin, into Celsius plus 32. So these are the two formulas which we use to find cell degree Celsius and degree Fahrenheit when degree Fahrenheit and degree Celsius is given. Actually, this is the formula. From this only I have to calculate the two formulas. So in the math also we also apply these two formulas. So in physics also we have these two formulas. But whenever we have to convert into degree Kelvin, then we have to talk about the Kelvin. Sorry, no degree, only Kelvin. So as you can see, division 100 division is in Kelvin and same 100 division is in degree Celsius. So we can convert Celsius to Kelvin and Kelvin to Celsius. No Fahrenheit, because we don't have the same division. That's why whenever we talk about Celsius and Kelvin, we have to convert these two only. Like हम degree Celsius को Fahrenheit में convert कर सकते हैं, Fahrenheit to degree Celsius. But so we can convert degree Celsius to degree Fahrenheit and degree Fahrenheit to degree Celsius. But when we talk about Kelvin, we never have to convert Kelvin to Fahrenheit. It never happens because they both have the division different. When we talk about Kelvin, we have 100 equal parts. Same for Celsius, we have 100. But for Kelvin, we have 180 equal parts. So we can convert degree Celsius to Kelvin and Kelvin to degree Celsius. That's the only thing that happens. If you have to convert into degree Celsius, you just have to add 273 to Kelvin. And we have to calculate Kelvin. Then you have to subtract it. So degree Celsius minus 273. But mainly we generally use this formula. So if we have to find degree Celsius, so just add 273 to Kelvin. If by chance they have asked about Kelvin, so just subtract them. So for degree Celsius and Kelvin, we use this formula. For degree Celsius and degree Fahrenheit, we use these two formulas for the conversions. So you can learn this degree Celsius, degree Fahrenheit and degree and Kelvin. So this is Fahrenheit, degree Celsius and Kelvin. So water boils, मतलब बहुत higher temperature, इसका तो 212. Here it can be maximum 200, here 373. For water freezes, chill, जब ठंडा होना शुरू करेगा, that is 32. Here 0 and 273 and absolute 0 जहाँ इससे lower और temperature नहीं जा सकता. So it's minus 159 minus 273 है 0 का. So इसके नीचे और temperature नहीं जा सकता. So this is here the temperature formula. Then it is activity to demonstrate and explain the use of clinical thermometer. How we use a clinical thermometer at clinics. So you have to have a mercury clinical thermometer. So one thermometer you need. Having Fahrenheit scale. So it having a Fahrenheit means the normal temperature is 98.4 degree Fahrenheit. Tap water, पानी के नीचे रखना है, some oral antiseptic to clean it, so it causes any infection or any bacteria it having. So wash the bulb of the thermometer. You never hold your thermometer from here. You always hold your thermometer from this point. You never touch, because this is the point which you have to keep under your tongue. So you keep the thermometer under a tap, clean it, then just flip it one time so that mercury temperature get lower down to normal, and then clean it with antiseptic so that no bacteria just cause inside our mouth. Keep the bulb of the thermometer lower our tongue. We keep our thermometer to lower our tongue for few minutes, like 3 to 4 minutes we keep it so that it can measure our body temperature. Now take out the thermometer and roll it slowly, and then you keep in front of your eyes. फिर आप देखते हो कि mercury का level का है. You see this type of a mercury level over there. It's shining one. तो तुम्हें एक point दिखता है, जिस point पे तुम्हें दिखता है कि this is a temperature which you have to note down. So normal temperature of Fahrenheit is 98.4 degree to 98.6 degree. So in between them, that means कि आपको कोई बुखार नहीं है. You don't have any temperature. अगर इससे ज़्यादा है, then means you have some fever. And for body temperature for Celsius, it is 37 degrees Celsius. So they talked about 24, so it can vary from 24 to 37. It can be a normal one.
So normal human body temperature we can take as 37 degrees Celsius. For Fahrenheit we have to take between 98.4 to 98.6 degree. So next activity is to measure the temperature of water. What is the temperature of this water? Same thermometer, to find out the temperature of your body, you keep it under your tongue. So for water, you have to keep the thermometer bulb, this bulb inside the water. This bulb only inside our lower our tongue is kept, that measure our temperature. Same, this lower end is kept in the water to measure the temperature, and we have to see the reading. So अगर रीडिंग देखनी है, you have to see it in vertical direction, like बिल्कुल सामने. So here you will see a whisk of a mercury like this, और जिसके सामने ये whisk खड़ा होगा, then you that temperature you will get of a mercury, that is 90 degree Fahrenheit. Mercury is always show us some shiny surface, then you will get to know what is the temperature. So it is showing let's add to be as 90 degree Fahrenheit. Showing the effect, क्या इफेक्ट पड़ेगा हीट के कारण, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है. So can you eat the raw material, like कच्ची सब्जी खा सकते हो? No, you need it to be cooked, and that is being cooked with the help of a heat energy. So जब भी आप raw देखोगे और cooked सब्जी देखोगे, you see the difference. It's physical. Appearance also it will be changed, and the taste also it will be a change. So there is a physical change also and a chemical change also. Like raw it will have something other nutrition, and when it is cooked it will have some another nutritions, and some because of a chemical like gas, it's a chemical reaction, कोई ना कोई chemical changes भी आए होंगे. So your cooked food will have your physical and chemical changes. Same goes when you sweat a lot, it is all because of your heat energy. When you walk a lot, when you exercise a lot, you sweat. That is all because the heat is being produced in your body. So they're asking, let us study some effect of the heat, like change in the temperature. When normal temperature, like you're not doing anything, no physical exercise, no running, then you have a normal temperature. Neither it will be more hot, nor it can be not cold. But when you have a temperature, you start feeling shivering. You feel cold. Same, they are saying different objects react differently to heat. Like we always know heat always travel from higher temperature to lower. जब चाय आप थोड़ी देर के लिए रख दो, if it is a very hot, it will gradually decrease its temperature and get cool, because it takes from the outside surrounding take our heat and give a cool temperature. Same they are asking, if we keep a two different temperature, like they are keeping a wood and a piece of iron under a sun, so wood will get hot, of course iron will get hot, whereas wood को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, it will not change any temperature. So heat किस पर डिपेंड कर रहा है? The amount of heat, कितनी आप heat अप्लाई करो, ज़्यादा heat अप्लाई करोगे ज़्यादा गर्म हो जाएगा, एंड उस मटेरियल का ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, तुम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो. ऐसा मटेरियल जो कभी हीट नहीं हो सकता, दैट मटेरियल. अगर मैं पॉलीथीन को देखूं, इट गेट हीटेड अप ईजली, आग जल्दी लग जाती है. पेपर, उसको आग जल्दी लगती है. वेयर एज वी टॉक अबाउट वुड, इट टेक टाइम टू गेट बर्न, बट ग्रेजुअली बर्न हो ही जाता है. सो नेचर सबका अलग है. पेपर का अलग डिफरेंटली फॉर्म में हीट अप होगा, वुड विल टेक अ डिफरेंट वन, सेम आयरन विल टेक अ डिफरेंट वन. सो नेचर, एक तो नेचर पर डिपेंड करता है, एंड आप कितनी हीट दे रहे हो, कितनी देर तक किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो. अब आपका माइक्रोवेव है, थोड़े टाइम के लिए लगाओगे वो थोड़ी देर के लिए गर्म होगी. वी कीप इट लाइक 1 या 2 मिनट के लिए गर्म करोगे, वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी. लाइक कितनी अमाउंट ऑफ हीट तुम आप दे रहे हो. सेम चाय को आप सिम में बना रहे हो, इट विल टेक टाइम. अब आप हाई फ्लेम में बनाओगे वो जल्दी बनेगी. सेम फीवर में आपको ठंड क्यों लगती है? क्योंकि आपके एंटीबायोटिक्स लड़ रहे होते हैं, हीट जनरेट कर रहे होते हैं. सो आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है. हाई, अब आपको पता है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर. सो आपकी शरीर से हीट बाहर जा रही है तो आपको ठंड लगने शुरू हो जाएगी. दैट्स व्हाई यू फील शिवरिंग. So at high temperature, heat of the surrounding increases, the body temperature also increases as compared to surrounding. शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि आपके एंटीबॉडीज लड़ रहे हैं. इट इज़ फाइटिंग, इट इज़ क्रिएटिंग सम हीट इन योर बॉडी. सो हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड हाई फील स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू सराउंडिंग एंड यू फील कोल्ड. सो आपके शरीर से हीट बाहर जाने शुरू हो गई एंड यू स्टार्ट फीलिंग कोल्ड. देन चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो इज़ देयर. जब आपके कोई ढक्कन खुल नहीं रहा होता है, ममास क्या कहते हैं, जस्ट कीप दैट लिड इन अ हॉट वाटर. हॉट वाटर से क्या होगा, गर्मी क्या करती है, किसी चीज़ को एक्सपैंड कर देती है.
तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो खुल जाएगा। और अगर उसको थोड़ी देर के बाद छोड़ दोगे, अगर बाई चांस तुमने नहीं खोला है, वो अपने आप उसी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, फिर वो खुलेगा ही नहीं। सो एवरीथिंग, एवरी मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाती है जब वो ठंडी होती है। जब आप ठंड में होते हो तो आप सिकुड़ते हो, क्योंकि आपको वार्मनेस अपने साथ ही रखनी है। सेम नेक्स्ट ऑप्शन दे हैव गिवन व्हील। जब आपके लकड़ की जो व्हील्स होते हैं, जो बुलक कार्ट को खींचने के लिए यूज़ होते हैं, उसके आसपास बाउंड्रीज पे ये मेटल की व्हील चढ़ाई जाती है इसके ऊपर। वो कैसे चढ़ाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बीइंग हीटेड अप। फर्स्ट इसको हीट किया जाता है, सो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड्स, सो इट साइज गॉट इंक्रीज। इसके ऊपर रखते हैं, जब इसके ऊपर अटैच्ड हो जाती है देन इसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। सो जैसे इस पर पानी फेंकोगे इट स्टार्ट गेटिंग कूल अप। ठंडी जैसे होएगी इट स्टार्ट कमिंग टू इट्स ओरिजिनल शेप, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी और इसके साथ अटैच हो जाएगी, फिर वो निकलेगी नहीं। बाय दिस मेथड द वीट ऑफ द कार्ड इज फिटेड विद आयरन रिंग्स। सेम कुकर की जो रबड़ हम यूज़ करते हैं एट अ होम, इट ऑल्सो स्टार्ट लूजन अप आफ्टर मैं आई थिंक सो आफ्टर 1 year or 2 year इट स्टार्ट लूजन अप। वाई? बिकॉज प्रेशर, स्टीम क्रिएट होती है। स्टीम मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक्सपैंड होने शुरू हो जाती है। सो ड्यू टू एक्सपेंशन इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, दैट्स वाई इसकी रबड़ चेंज होती रहती है। सेम हेयर थर्मोमीटर में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। आपका थर्मोमीटर मर्क्यूरी जैसे हट टेम्परेचर लेगा, गर्म होगा, एक्सपैंड कर जाएगा, मतलब राइजन अप हो जाएगा, टेम्परेचर आपको दे देगा आपका बॉडी का। एंड देन व्हेन यू लीव इट एंड क्लीन इट विद द वाटर एंड जर्क इट, तब वो ठंडा हो रहा है, मतलब वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ रहा है। सो इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। एंड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मर्क्यूरी इज यूनिफॉर्म एंड मर्क्यूरी डू नॉट स्टिक टू द वॉल। वो इतनी अच्छी मर्क्यूरी कभी भी वॉल के साथ स्टिक नहीं होती, मतलब एक्सपैंड करी तो प्रॉपरली एक्सपैंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एंड इट इज़ वेरी ओपेक, ट्रांसपेरेंट है एंड शाइनी लिक्विड, जो आपको आसानी से रीडिंग दे सकती है। दैट्स वाई वी यूज़ थर्मोमीटर इन मर्क्यूरी इन अ थर्मोमीटर। देन यू हैव एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ का साइज़ बड़ा हो जाना, हीट के कारण हर चीज़ एक्सपैंड करती है। एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब टेम्परेचर, उसका साइज़ छोटा हो जाना है, और ठंड में हर चीज़ कूलिंग के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। द बेस्ट एग्जाम्पल आर सम ऑफ रेलवे ट्रैक्स। अगर ध्यान से देखो रेलवे ट्रैक्स में कोई ना थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है। 2 रेलवे ट्रैक्स में ये जगह क्यों छोड़ी होती है? वाई? बिकॉज ऑन हीटिंग, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, दिस आयरन कैन एक्सपैंड। अगर एक्सपैंड करेगा तो इट विल नीड सम स्पेस को, ताकि वो एक्सपेंशन कर सके। अगर ये स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो एक्सपेंशन के कारण क्या होगा? बेंड हो जाएगा और तुम्हारा ट्रैक ऐसे बन जाएगा, और वो ट्रेन के लिए बहुत हानिकारक होगा। योर ट्रेन कैन हैव एन एक्सीडेंट। दैट्स वाई थोड़ा सा गैप छोड़ा होता है, ताकि जब उसको कॉन्ट्रैक्ट होना सर्दियों में तो भी उसके पास इनफ स्पेस हो, एक्सपैंड करना तभी इनफ स्पेस हो। सेइंग क्यों जब हम ज़मीन बना रहे होते हैं, अपनी फ्लोरिंग कर रहे होते हैं, तब हम हमेशा ग्लास या वुडन स्ट्रिप्स को क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ग्लास इज़ अ बैड अब्जॉर्बर, मतलब ये हीट को अब्जॉर्ब नहीं करता है, दे विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड समवेयर। और सेम वुड भी ना को एक्सपैंड करती है ना कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर बाई चांस फ्लोर हीट अप होने के कारण, जैसे हमारे छत पर होता है, टेरेस पर होता है, तो फ्लोर कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होगी, इतनी हीट मिलती है। सो हम जनरली इसमें ग्लास के थोड़े से पीसेस या वुडन स्ट्रैप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हीट, अब जितनी भी हीट अगर बाई चांस वो एक्सपैंड भी करेगा तो वो उस हीट के साथ जो एक्सपैंड कंट्रैक्शन होगी तो वो ग्लास और तुम्हारा वुड उसको नहीं होने देगा। इट गिव इनफ स्पेस फॉर इट। जब आपके फ्लोर्स बन रहे होते हैं, एक टाइल पूरी जो लगाते हैं उसमें कोई ना कोई स्पेस छोड़कर उसमें या वुड फिल की जाती है, मेनली ग्लासेस फिल की जाती है। शीशे के कुछ ना कुछ लगाए होते हैं, लाइनिंग्स लगाई होती हैं। वो क्यों लगाई होती है? जस्ट बिकॉज इट कैन अब्जॉर्ब एनी हीट और एनी कॉन्ट्रैक्शन इफ़ एनी अक्कर इन द फ्लोर, वो अब्जॉर्ब कर सके और कोई क्रैक ना आए फ्लोर में। दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज़ सम लाइनिंग। जब वुड की लाइनिंग यूज़ करते हैं, जब पहले ज़माने में मिरर, शीशों की, ग्लास की यूज़ की जाती थी। सेम योर ब्रिजेस का एक पॉइंट ब्रिज का हमेशा फिक्स किया जाता है, अदर ब्रिज के नीचे रोलर्स लगाए होते हैं। वाई? बिकॉज ब्रिज भी एक मेटल है, इट ऑलवेज एक्सपैंड। जब एक्सपैंड करे उसको,
रोलर्स इसलिए कहा जाता है ताकि वो एक्सपैंड करे तो आसानी से मूव हो सके, स्पेस उसके बाद इनफ हो। अगर दोनों साइड मैं फिक्स कर दूंगी, एक्सपेंशन के कारण उसको इनफ स्पेस नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों पॉइंट फिक्स्ड हैं, तो इट विल ब्रेक आउट। सो ब्रिजेस कोलैप्स ना करें, कुछ प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई एक साइड उसका फिक्स किया जाता है, सेकेंड साइड रोलर्स के ऊपर रखा जाता है। सेम रीज़न इफ़ यू हैव सीन द वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर जो बिजली लेके जा रही होती है, वायर्स लूज लाइटली ऐसे लटका के क्यों रखी होती हैं? बिकॉज जब गर्मियों में इसने एक्सपैंड करना है, इट बस इनफ स्पेस हो ताकि अगर खींच भी जाए तो टूटे ना, और विंटर में जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तब भी ये टूट ना जाए, दैट्स वाई ये लूज ना, बहुत लूज लगाई जाती है। अगर बाई चांस ये स्ट्रिंग स्ट्रांगली लगाई जाती तो जब उसको गर्मी में एक्सपैंड करना है तो यहाँ से टूट जाती, तो बार बार तुम्हें वायर्स चेंज करनी पड़ती बिजली की, दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज अ लूजन अप। सो दे आर टॉकिंग कि अभी हमने जितनी भी एक्सपेंशन देखी हैं वो हीट के कारण, थर्मल एक्सपेंशन, सो वी इट कॉल एज अ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हीट के कारण एक्सपैंडिंग। एंड दिस एग्जाम्पल वी हैव ऑल सीन इन द सॉलिड। सो दे आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड एंड गैस में भी एक्सपेंशन होती हैं, पर उनका अपना तरीका है। In solid it is different, in liquid and gases it is different. So as we know, liquid and gases की कोई shape नहीं है, so it has only volume. So through volume it contracts and expand. So they have given an experiment. 2 laboratories stand, one piece of thick metallic wire, burner, bottle with a lid, capillary tube, wire mesh, 4 brick, balloon, water and. So this is a burner, जिससे heat निकलेगी, wire, and this is a stand. सो दे हैव केप्ट इट ऑन अ बर्निंग वन, तो अगर इसको बर्न करूँगी ये वायर क्या होने हो जाएगी, एक्सपैंड करने। सो टेक इट टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट वी टॉक अबाउट सॉलिड, देन वी स्ट्रेच द वायर बिटवीन 2 स्टैंड एंड हीट विद द लो फ्लेम। पहले हम वायर को रखेंगे और उसको थोड़ी सी फ्लेम्स में हीट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो वायर जो यूज़ कर रहा है वो पिघल ना जाए। देन इट कीप ऑन हीटिंग इट अप, हीटिंग होने के कारण क्या होगी, इट स्टार्ट एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग के कारण होगी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, सो इट बिकम लूज हो जाएगी। सो उसका लेंथ बढ़ चुका है, स्ट्रेच, और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कब चली जाएगी, जब हम इस बर्नर को रिमूव कर देंगे। वो जैसे इसको रिमूव करेंगे वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में, एंड इट विल अगेन गेट इनटू इट्स नॉर्मल लेंथ। पर जब हम हीट कर रहे हैं इसकी लूज हो जाएगी बिकॉज इस लेंथ इज increasing. Then we have talked about the liquid. Level of water in the tube before, after and heating, कि पहले लेवल क्या होगा और बाद में लेवल क्या होगा वो हमने देखना है। So they have kept the brick, 2 ईंटों के ऊपर एक स्लैब रख दी है। स्लैब कौन सी रखी हुई है, वायर मैश, वायर मैश मतलब एक वायर जाली जिसे कहते हैं वो रखी हुई है, एंड देयर इज़ अ बर्नर। जाली के थ्रू इस बीकर को बर्न किया जा रहा है और बीकर के अंदर पानी रखा हुआ है एंड थिन ग्लास पाइप, और यहाँ एक ग्लास रखा हुआ है टू सी द मेजरमेंट। सो ऑन हीटिंग वाटर एक्सपैंड, सो लेवल ऑफ वाटर इन द ट्यूब इंक्रीजेस। कहते हैं पहले बर्नर से पहले एक लेवल मेजर करो, देन यू स्टार्ट हीटिंग इट अप। हीटिंग के कारण क्या होगा, पानी एक्सपैंड करेगा, पानी एक्सपैंड करने के कारण लेवल हाई अप हो जाए। बस इसमें ये ध्यान रखना है दैट वाटर जो हीट अप हो रहा है वो थ्रू वाटर वेपर बाहर ना निकल जाए। अगर वाटर वेपर के थ्रू बाहर निकल जाएगा तो इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम और वाटर वेपर एस्केप हो जाएंगे और पानी आपका बीकर का ख़त्म हो जाता है। व्हेन यू स्टार्ट बॉइलिंग योर वाटर, व्हेन यू मेक अ मैगी और समथिंग, यू हैव सीन इट व्हेन यू बॉयल अ वाटर। सो आपको बस ये ध्यान रखना है यहाँ से ही वाटर वेपर बाहर ना जाए। सो इतना बॉयल नहीं करना, बॉइल्ड वाटर नहीं करना, सिर्फ हीटन अप करना, इतना हीटन अप कि बस पानी का एक्सपेंशन देखना है तुम्हें। देन गैस, बलून इज इन्फ्लेमेटेड कंडीशन व्हेन यू पुट द नेक ऑफ द बॉटल। क्या क्या तुमने एक जार लिया, जार के नेक पर बलून लगा दिया, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट हीटिंग इट अप। हीटिंग के कारण क्या होगा, हवा एक्सपांड करेगी और सारी हवा राइज अप होगी, राइज अप होने के कारण बलून फूल जाएगा और बलून थोड़ा इन्फ्लेमेट मतलब फूल जाना है, और जैसे इस बर्नर को रिमूव कर दोगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए।